नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gaura Nitai,
Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Anand Koti Hari Naam Sankirtan Yagya ki jai. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, for a wonderful Kirtan. Hare Krishna and pranams, dear devotees. So, we welcome everyone to our Friday evening Vaishnav etiquette sessions by His Grace Rajendra Krishna Prabhu from Ujjain. So, we once again very heartily welcome Prabhuji to this sessions, and we welcome him by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Vrinda Krishna Prabhu. So over to you now. Thank you so much, Robert, and thanks to all the devotees for always coming and attending this session and giving me opportunity to purify myself. I am always happy whenever I interact with Gurgaon devotees. I don't know, Bhuvan Mohini Mataji is from Gurgaon or Ujjain. Mataji is from both the sides. Okay. There should be someone who can coordinate, like make a balance between both the sides. Yes, Prabhuji. We haven't let Mataji go. Okay, so Hare Krishna Prabhuji. Ji, Mataji. My heart is still in Gurgaon. Okay. So we will make all the best arrangements so that some of your heart may also be connected with Ujjain. Yes, Rudy. Here also. Okay, so we'll start today's session, that is serving and honoring Prasad. I'll hope that I'll not bore you. I have few interesting pastimes of Sri Guru Maharaj to share with you, along with the information mentioned given in the website, Guru Maharaj's website. To start with the Mangalacharan, Om Ajnana Timnandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Utpatkamlam Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sagratam Sagra Rangrathan Tam Tam Tadivam Sadvaitam Savdutam Parajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagra Lilita Shri Vishakhan Vitamsha नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So thanks to devotees for present by switching on their videos. Special thanks to devotees who have switched on their videos, and also thanks to devotees who have switched off their video. Okay, so this is a very good topic. Actually, हमारी पूरी ISKCON की फाउंडेशन ही प्रसाद पे जुड़ी हुई है. श्रील प्रभुपाद ने इस मूवमेंट की शुरुआत कीर्तन और प्रसाद से ही की, क्योंकि फिलॉसफी तो बाद में प्रभुपाद ने दिया, श्रील प्रभुपाद ने,
पहले टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में बैठ करके करताल लेकर के श्रील प्रभुपाद ने कीर्तन से स्टार्ट किया, और श्रील प्रभुपाद ने खुद ही जो है प्रसादम जो है बनाया, सर्व किया। इनफैक्ट इनिशियली तो हिप्पीज को तो एटिकेट्स कुछ क्लियर नहीं था, तो श्रील प्रभुपाद को उनके द्वारा खाने मतलब प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो प्लेट्स थी वो भी वॉश करनी पड़ी। तो ये सारे सेक्रीफाइसेस से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई है। इस कारण से मूवमेंट श्रील प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस के 43 इयर्स के बाद भी केवल कंटिन्यू ही नहीं किया है, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। इट्स ऑलवेज एक्सपैंडिंग। तो प्रसादम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गुरु महाराज ने वेबसाइट में भी शेयर किए हैं। उसका एक लिंक भी है जो मुझे भी शेयर किया है रामेश्वर गौरांग प्रभु ने। मे बी रामेश्वर गौरांग प्रभु यू कैन शेयर इट इन सम ग्रुप, या आपका गुड़गांव का जो ग्रुप होगा उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं, तो devotees कैन रीड एज वेल। So that will be helpful. But सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें होती है वो है स्पिरिचुअल कंपोनेंट। जैसे कई बार डिवोटीज जो हैं या ज्यादातर जो हैं ईटेबल्स को हम लोग थोड़ा सा एंजॉइंग मेंटालिटी के साथ में अप्रोच करते हैं। दैट्स ओके, बट एट द सेम टाइम उसका स्पिरिचुअल कंपोनेंट को हिट करने के लिए स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज क्या है कि उसका टेस्ट कंपोनेंट तो हिट हो जाएगा, परंतु स्पिरिचुअल कंपोनेंट उसका हिट नहीं हो पाएगा। बोलते हैं भोग बनाने की जो भगवान को जो भोग लगाते हैं उसकी स्टार्टिंग तभी से हो जाती है जब से व्यक्ति जो है परचेज करना शुरू करता है। कोई आइटम उन्हें परचेज करना शुरू किया, उसको प्रिपरेशन के दौरान तभी से ही बेसिकली उसकी ऑफरिंग प्रोसेस स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 जो है चालू हो जाती है। फिर जिस कॉन्शियसनेस में बनाया जाता है, जिस प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस में ऑफर किया जाता है, जिस प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस में उसको ग्रहण किया जाता है, ये सारे फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग पैरामीटर्स हैं। तो तो जितनी ज्यादा हाई कॉन्शियसनेस रहेगी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है उसका स्पिरिचुअल फैक्टर जो है वर्कआउट करेगा, उतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे चित्त में आएगा। नहीं तो एक्चुअली ये तो सारी प्रोसेस के लिए, कोई बुक रीडिंग कर रहा है, बुक रीडिंग थोड़े से इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है, प्यूरिफिकेशन के हिसाब से कम कर रहा है, तो बुक रीडिंग फिर उतना ही लाभ देगी। कोई व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है, स्कोरिंग मेंटलिटी कर रहा है कि आज मैं एकादशी के दिन 64 माला का जप करूंगा, ठीक है 64 माला का जप हो जाएगा, उसको सेटिस्फैक्शन ही मिल जाएगा। और प्यूरिफिकेशन कितना होगा वो दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द डिवोशनल कॉम्पोनेंट। आरती है, हाँ ठीक है, आरती ऑल्टर पे जाकर किसी ने परफॉर्म भी कर दी, परंतु कितना प्यूरिफिकेशन होगा वो किस चीज पे डिपेंडेंट करेगा कि किस एटीट्यूड, किस विनम्रता, किस स्वीटनेस, किस डिवोशन के साथ में हमने वो एक्टिविटी परफॉर्म की है। तो सारी की सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ये डिवोशनल कंपोनेंट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। इसी कारण से अलग अलग भक्तों की अलग अलग स्तर पे आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो पाती है। नहीं तो फिर समय के साथ में जिसने 5 साल बिताए और जिसने 10 साल बिताए, तो 10 साल वाले का डेफिनेटली ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, 15 साल वाले की उससे और ज्यादा होनी चाहिए। परंतु जिस व्यक्ति ने मोमेंट बाय मोमेंट जितना ज्यादा कृष्ण के बारे में चिंतन किया है, दैट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। In the language of cricket, we say that it doesn't mean how much balls a batsman has faced, but how much runs he has scored. किसी ने 150 बॉल पे 50 रन मारे और किसी ने 30 बॉल पर ही 60 रन बना दिए, तो दैट इज मोर ग्लोरियस। सो एक एक मोमेंट जो हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, दैट इज लाइक द प्रोग्रेस विच वी आर मेड। एक डेफिनेशन भी कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स मोमेंट टू मोमेंट प्रोग्रेस, मोमेंट टू मोमेंट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण। कितने मोमेंट्स, कितने सेकंड्स हमने बेसिकली कृष्ण के लिए खर्च किए, कृष्ण के लिए समर्पित किए। सो दैट इज द डिपेंडिंग पैरामीटर। सो दिस वाज द कृष्ण को दुर्योधन से मिलने के लिए जब कृष्ण गए थे शांति दूत बनकर, तो उस टाइम पे दुशासन के पैलेस में कृष्ण को आमंत्रण दिया गया था, पर कृष्ण ने कहा कि केवल 2 ही स्थिति में व्यक्ति जो है वो ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, या तो फिर व्यक्ति भूखा हो, या तो फिर सामने वाले ने
प्रेम से बुलाया हो। तो बोले ना तो मुझे भूख है ना तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तो इस कारण से तुम्हारे घर आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जबकि विदुर के घर में भगवान जो है वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए। क्यों? क्योंकि विदुर की वाइफ का डिवोशनल कंपोनेंट बहुत हाई था। हाँ, तो उनके वहां पे जाकर के उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। So that is about the devotional component. हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि भगवान सुबह सुबह अगर भक्त जगाते हैं, उनको मंगल भोग लगाते हैं, तो भगवान बहुत अच्छी चेतना में रहते हैं। उस समय अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर खुश हो, प्रसन्न हो, उस समय अगर कोई उससे कुछ बोले, मांगे, तो उसके मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अभी तो बहुत ऑस्पिशियस, सुप्रीमली ऑस्पिशियस मंथ कार्तिक का चल रहा है। आज को हटा दें तो भी 10 दिन अभी बाकी हैं, तो इन 10 दिनों का हम और पूरा लाभ उठा सकते हैं और स्पिरिचुअल हाइट्स में ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा सा ये वेबसाइट से मैं रीड करूंगा। Serving and honoring prasad. I like this idea very much. Our chanting is the medicine and our prasadam is the diet for curing material disease. दो चीजें बताई जा रही हैं, एक तो चैंटिंग और एक प्रसाद। जीवा के भी दो ही फंक्शन है, या तो वो होली नहीं मटर करती है या प्रसाद लेती है। बोलते हैं कंठी माला जो हम पहनते हैं, तो हम कंठी माला पहनने से हमको 2-3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि किस प्रकार से हमको इस गले के नीचे ऐसी चीजें नहीं उतारनी चाहिए जो कि शास्त्र विरुद्ध हैं। जो भी कंठी माला पहने हैं उनको ऐसी कोई चीज गले से नीचे नहीं उतारनी चाहिए, खानी नहीं चाहिए जो कि शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंठी माला पहनी हुई है। तो दैट इज ऑल्सो वन सिग्निफिकेंस। इसलिए कोई व्यक्ति बोलते हैं कि अभी हम तो कंठी माला पहनना चाहते हैं, पर साथ ही साथ में हम जो है मीट ईटिंग करते हैं या कुछ शराब वगैरह पीते हैं, तो उनको स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। कोई व्यक्ति बोलते हैं कि हम प्याज लहसुन खाते हैं और हम कंठी माला पहनना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा वेरिएबल है, अलग अलग टेम्पल में अलग अलग बताते हैं। बोलते हैं कि अगर आपकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है प्याज लहसुन खाने की, तो फिर आप पहन सकते हैं। अगर आपको किसी मजबूरी में प्याज लहसुन खाना पड़ जाता है, तो आप तुलसी महारानी से क्षमा मांगते हुए आप उनसे क्षमा मांगते हुए रह सकते हैं। बट वॉलंटरली यू शुड नॉट एंडेवर कि आज हमारी इच्छा हो रही है कि वो थोड़ी लहसुन वाली कोई सब्जी खाने की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इफ योर ओन डिजायर इज स्ट्रॉन्ग देन डू नॉट वियर मैटर, क्योंकि ये एक शो के लिए नहीं है, ये एक फैशन के लिए नहीं है। तो कैसी स्थिति में व्यक्ति पहन सकता है? जिस स्थिति में वो स्वयं से कम पक्का हो कि हाँ खुद से मैं नहीं चाहता हूँ, पर किसी मजबूरी में किसी स्थिति में अगर मुझे खाना पड़ जाएगा तो मैं माफी मांग करके ले लूंगा। तो ये उसमें उस टेम्पल्स में दो बीट्स का बोलते हैं। हालांकि गुरु महाराज से प्रश्न हुआ था तो गुरु महाराज ने कहा था कि तुलसी माला का तो स्टैंडर्ड 3 बीट्स का ही है, बाद में फिर इस्कॉन में 2 बीट्स और 3 बीट्स का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। रिटर्न में मुझे आज तक कभी कुछ भी नहीं मिला इसके बारे में कि कौन 2 बीट्स पहन सकता है, कौन 3 बीट्स पहन सकता है। कहीं कोई रिटर्न में मैंने वेदाबेस में सर्च किया, कहीं मुझे कुछ नहीं मिला। पर एटलीस्ट ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इफ वन वांट टू गेट द फुल मर्सी ऑफ तुलसी महारानी, तो फिर उसको अपने ईटिंग हैबिट्स में कंट्रोल करके एटलीस्ट इस स्तर तक आना पड़ेगा कि वो ओनियन गार्लिक को अवॉइड कर सके। आगे शील प्रभुपाद लेटर टू दयानंद, October 17, 1968, how to honor prasad. When a devotee distributes prasad, the remnants of food offered to the Supreme Personality of Godhead, in order to maintain our spirit or devotional service, we must accept this prasad as Lord's grace received through the pure devotees. Nectar of instruction, text for purport. Okay, so NOI के text for में ये दिया गया है। भगवान की कृपा मानते हुए इसको हमको ग्रहण करना चाहिए। Point 1, remember that Krishna Prasadam is not different from Krishna. Recite the Sharir Avidya Jal Jada Indriya Taika, the prayer which we generally sing. तो अभी जो है प्रेयर्स के पहले भी कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे कई बार हम महाप्रसाद गोविंदे नमः ब्राह्मणी वैष्णव में तोते की तरह रट देते हैं और हमको खुद ही पता नहीं चलता कब चालू किया था कब खत्म हो गया। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको क्या बताऊं, एक दिन मैं हमारा जो बेस है ना, सेंटर है, वहां पे मैं बोला प्रभु जी आज आप भोग लगाइए।
तो मैं भोग लगाने के लिए बैठा, घंटा जब बजा रहा था तो मैं चालू किया माँ प्रसाद गोविंद नमो ब्राह्मणे वैष्णव। फिर मुझे याद है, हे भगवान, अभी तो नमो मिट्टू बजा से शुरू करना था। तो समटाइम्स वी आर सो डल इन अवर कॉन्शियसनेस कि हम कुछ का कुछ कर देते हैं। ऐसा होता है। कभी हम लोग गायत्री करने बैठते हैं तो पहला मंत्र चलो 7 मंत्र रहते हैं उसमें, तो पहला मंत्र चलो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, पता चला दूसरा तीसरा पता ही नहीं लगा कब निकल गया। आदत हो ही चुकी है, फिर चौथे में याद आया। कभी कभार नरसिंह आरती में ऐसा होता था ना 5 मिनट की नरसिंह आरती मात्र, पर पता नहीं चलता चौथी लाइन कब निकल गई, 5वीं लाइन कब निकल गई। तो ये दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जितना ज्यादा हम मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएट होंगे ना, उतना ज्यादा हम एक्टिवली प्रेजेंट रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि इग्नोरेंस के कारण फिर बार बार क्या है कि हम डूबते जागते रहते हैं, सोते हैं फिर जागते हैं, फिर थोड़ा कुछ सुनते हैं फिर सो जाते हैं, कहीं माइंड हमारा इधर उधर घूम फिर करके वापस फिर आ जाता है। चैंटिंग के टाइम पे जो नींद आती है वो किस कारण से आती है? इग्नोरेंस के कारण से आती है। कोई व्यक्ति जो वास्तविकता में प्रॉपर्ली मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएट हो गया और जिसमें रात की नींद पूरी हो गई है, वो व्यक्ति नहीं सोएगा सुबह टाइम पे। हम देखते हैं हाँ अच्छे से हमारी पूरी नींद भी हो गई, सब कुछ ठीक है, बॉडी भी सही है, उसके बाद चैंटिंग करने बैठ 2 माला के बाद फिर घूमना शुरू कर दिए। बंगाली में घूमने को सोना बोलते हैं, तो घूमना मतलब सोना शुरू कर दिए। अभी कई बार क्या फ्लो में बंगाली वर्ड्स निकल जाते हैं। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस बेसिकली। जितना ज्यादा इग्नोरेंस हमारे कॉन्शियसनेस से हट जाएगा, उतना ज्यादा हम कृष्ण को क्लियर देख पाएंगे, होली नेम को क्लियरली सुन पाएंगे, कृष्ण के प्रसाद को एक कृष्ण की कृपा के रूप में देख पाएंगे। ये तो क्या था, पूरे टाइम हमारी एंजॉइंग मेंटालिटी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहती है। हाँ, जैसे कभी हमारे भक्तों के सामने पिज्जा वगैरह आ जाता है तो क्या सोचते हैं महाप्रसाद गोविंद भी शॉर्टकट में ही कर लेते हैं। गरम गरम पिज्जा, उसमें से चीज पिघला हुआ है, अरे कब ये हमारे मुख के अंदर जाएगा। so in that way the enjoying mentality becomes like 10x, और वो कृष्णा कंपोनेंट जो है था वो 0.25x वगैरह से बच पाता है। तो in that way there's a need of working in our consciousness। देखिए हो सकता है कि आज ये चीजें हम सुन रहे हैं और कल से हम अप्लाई ना भी कर पाए, पर बार बार सुनने से क्या होता है कि हमारा कन्विक्शन जो है वो जागृत होता है कि अच्छा जाना तो इसी डायरेक्शन में, भले आज नहीं जा पा रहे वो अलग बात है। कई कई दिनों तक, कई महीनों तक जिस भी चीज के लिए हमारा अप्रिशिएशन डेवलप हम करते हैं, उस चीज को अंततः हम प्राप्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो इसलिए फेथ और अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है हमारी प्रोसेस में। आज हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, कोई हैबिट है जिसको हम नहीं भी हटा पा रहे हैं, पर फिर भी उसके बारे में सुनना, समझना, चिंतन करना आवश्यक है। वही अगले 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हमारे संस्कारों में परिवर्तन लाएंगी चीजें। पर अगर वो सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर कभी भी परिवर्तन नहीं आ पाएगा। And the transformation is the goal with which we are working, with which we are involved in the practice of Krishna consciousness. What do we want to achieve? Transformation of heart. हम अपने हृदय में से सारे के सारे मल को हटा देना चाहते हैं, अनर्थ रूपी मल को हम हटा देना चाहते हैं और अपने हृदय में कृष्ण को, राधा कृष्ण को स्थापित कर देना चाहते हैं। तो ये हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। कृष्ण को हम कोई ऐसी जगह तो आमंत्रित नहीं कर सकते जो साफ नहीं है। तो जब तक हृदय साफ नहीं रहेगा तो हम भगवान को आमंत्रण देंगे कैसे? अभी जैसे श्री गुरु महाराज को अगर कोई गृहस्थ अगर अपने घर में बुलाते हैं तो पहले पूरा आपका व्यवस्था जमाते हैं कि नहीं, कि हाँ पहले घर हमारा साफ होना चाहिए, तो ही जाकर तो हम गुरु महाराज को आमंत्रण दे पाएंगे। श्री भक्ति प्रेम महाराज अभी कहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो पहले ही वो बता देते हैं कि भाई हमको एक दिन पहले ही बता देना कब महाराज आ रहे हैं, ताकि हम उस हिसाब से व्यवस्थाएं जमाएं। तो जब इस प्रकार से हम भक्तों को ट्रीट करते हैं तो इसी प्रकार से वाकई अगर हमको भगवान को अपने हृदय में स्थापित करने का हमने चैलेंज लिया है, प्रतिज्ञा ली है, तो उसके लिए हमको अपने सारे जो अनर्थ हैं उनको भी वाइप आउट करने के बारे में उत्साही रहना पड़ेगा। ओके, तो पहला पॉइंट है कि हमको शरीर अविद्या जल प्रेयर इस प्रकार से इसके मीनिंग समझते हुए जो है दोहराना चाहिए। अगर हमको मीनिंग याद नहीं है तो हमको अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट में ही मीनिंग रख लेना चाहिए। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस रहते थे जो कि हमको मालूम रहता था कि हमको जीवन में याद होना ही होना चाहिए, तो हम क्या करते थे, उसका स्क्रीनशॉट बना करके 2-4 दिन तक अपने मोबाइल में डाल लेते थे, लॉक स्क्रीन में, फ्रंट स्क्रीन में, ताकि जैसे ही मोबाइल खोलेंगे तुरंत वो चीज हमको सामने सामने दिख जाएगी।
तुरंत बार बार क्लिक होगा, अच्छा अच्छा ये चीज हमको पता होनी चाहिए। दीज आर द शॉर्टकट्स। तो इस प्रकार से हमको सिंसियरिटी को डिस्प्ले करना जरूरी है। यूज द राइट हैंड टू ईट एंड ड्रिंक। अभी कई बार कुछ लोग लेफ्ट के होते हैं, हर काम लेफ्ट हैंड से करते हैं, और अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपको पता चलता है राइट हैंड से सब कुछ करना है। उस एकदम सर खाना भी है, सर्व भी करना है, तो पकाना भी है, सब कुछ राइट हैंड से ही करना है। तो कई बार जो लेफ्ट हैंड, जिनका लेफ्ट हैंड ज्यादा एक्टिव रहता है, उनको थोड़ा समय लगता है। तो पर धीरे धीरे वी शुड बी हैबिचुएटेड। ये वैष्णव एटिकेट जो है ये हमारे जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वैष्णव एटिकेट्स आर द ऑर्नामेंट ऑफ अ वैष्णव। तो पहले हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता था, कभी हम सर्विंग के लिए जाते थे तो दोनों हाथ से सर्विंग कर देते थे फास्ट सर्विंग करने के चक्कर में फिर डिवोटीज बताते कि नहीं नहीं प्रभु जी, थोड़ा स्लो सर्विंग करो चलेगा, परंतु राइट हैंड से ही सर्व कीजिए, लेफ्ट हैंड का उपयोग मत कीजिए। खाते टाइम पे हमारी आदत थी दोनों हाथ से खाने की, है ना। एक हाथ से रोटी पकड़ते थे, दूसरे हाथ से रोटी तोड़ते थे। मेरी तो एटलीस्ट ये आदत थी दोनों हाथ से खाने की। बाद में डिवोटी तो बोल बोल के बता कि नहीं वो एक हाथ से खाना सीखो। हमने कहा "अरे, एक हाथ से रोटी कैसे टूटी?" बोले अगर टूटेगी हम तोड़ करके बताते हैं सो दैट स्टेप बाय स्टेप वी मूव्ड अहेड। तो we should try to use right hand. Third point, meditate on how Krishna tasted the offering. One can also meditate on Krishna's mercy in providing prasadam and the prasadam pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna. देखिए एक ब्राह्मण का पास टाइम आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कैसे वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे कि भगवान को कुछ ऑफरिंग दे पाए। तो सोचता था, उसने एक बार शास्त्र में वर्सेस पढ़े किस प्रकार से मन के द्वारा भी दी गई ऑफरिंग भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो वो मन में बैठ करके ऐसा मेडिटेट करने लगता था, कैसे इस प्रकार से मैंने भगवान के लिए स्वीट राइस बनाया, भगवान के लिए पूरी कचौरी हलवा बनाया, ऐसे मानसिक रूप से ही मेडिटेट करके बनाता था, मानसिक रूप से ही वो ऑफर कर देता था और खुश हो जाता था। पर फिर भी कहीं न कहीं उसको लगता था मालूम नहीं ये तो मेरी मनोकल्पना ना हो सकता है कि बहुत मालूम नहीं भगवान एक्सेप्ट करते भी नहीं करते हैं। तो एक बार इसी प्रकार से बनाते-बनाते उसको लगा कि अच्छा स्वीट राइस है, मैंने खीर जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाई है, इसको ज़रा टच करके देख लूँ कि कहीं ज़्यादा गरम तो नहीं है, भगवान को भोग लगाने लायक तो नहीं है, भ भोग भगवान को भोग लगाने लायक है या नहीं है? तो सब कुछ मानसिक चल रहा है, मानसिक रूप से ही जैसे ही वो टच करता है, तो तुरंत उसका हाथ जल जाता है। आँख उसकी खुलती है तो देखता है कि अच्छा अरे! मेरी तो उँगली जल गई। उसे लगता है कि अरे! मैं तो मानसिक रूप से भगवान के लिए जो है भोग बना रहा था, पर वास्तविक रूप से मेरी उँगली जल गई। इसका मतलब है भगवान ज़रूर से जो मानसिक रूप से भी ऑफरिंग होती है उसको एक्सेप्ट करते ही करते हैं। वी शुड ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल व्हेनेवर वी सिट एंड ईट प्रसाद। हमको हमेशा एक थैंक्स गिविंग फीलिंग होनी चाहिए हमारे हार्ट में कि थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस थिंग। कई बार कभी हम ऑफिस में रहते हैं, हमारे पास कोई ऐसी अनऑफर्ड चीज आती है और हमको समझ में नहीं आता अभी इसका क्या करना चाहिए। तो उसके लिए फिर निर्देश है, अगर आप एक बार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके ले लें, तो यू विल बी सेव्ड फ्रॉम एनी सिनफुल रिएक्शन। बोले इतना भी समय नहीं है, एकदम आपको 1-2 सेकंड के अंदर ही बॉस को प्रसन्न करने के लिए लेना ही पड़ेगा, तो मैं 3 बार श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु बोल करके उसको ग्रहण कर लें। तो तो इससे एटलीस्ट उसके अंदर के जो सिनफुल रिएक्शन है वो निकल जाएँगे। आपको उसका उसमें जो पाप जो है वो नहीं लगेगा, आपको टच नहीं करेगा। तो ये शास्त्रिक इंजंक्शंस है। श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु 3 बार बोलकर ग्रहण करना। सीधे ही ऐसे ले लिया तो फिर उसके साथ फिर सिन भी अंदर चला गया। और एक प्रसादम का है कि वी कैन एंटर इनटू अदर्स कॉन्शियसनेस थ्रू प्रसाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज डिवोटी माताजीज whose husbands are not devotees। कभी हस्बैंड डिवोटी होते हैं, वाइफ डिवोटी नहीं होती है, कभी वाइफ डिवोटी होती है, हस्बैंड डिवोटी नहीं रहते हैं। तो वैसी स्थिति में ये माताजीज के लिए, लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ दे कैन मेक भोगा इन वेरी गुड कॉन्शियसनेस, ऑफर इट इन डिवाइन कॉन्शियसनेस, तो अगर फिर वैसे वैसे स्पिरिचुअली पोटेंट प्रसाद को अगर सर्व करेंगे हस्बैंड को, बच्चों को, तो उनकी चेतना में भी धीरे-धीरे परिवर्तन आएगा, आएगा ही आएगा। क्योंकि वी कैन एंटर इनटू अदर्स कॉन्शियसनेस थ्रू प्रसाद।
शील प्रभुपाद के मूवमेंट में शुरुआत में जिन लोगों ने भी शील प्रभुपाद के वो रसगुल्ला, उसको बुलेट्स बोलते थे ना, स्वीट बुलेट्स, स्वीट बुलेट्स कोई खा लेता था तो उसके बाद फिर प्रभुपाद का ही हो जाता था। बाद में कभी उसकी छोड़ के मूवमेंट जाने की इच्छा भी होती थी तो वो बड़े बड़े रसगुल्ले याद आते तो उस चक्कर में टिक जाता था। तो डिवोटीज ने इस प्रकार से पास्ट टाइम्स अपने शेयर किए हैं शील प्रभुपाद डिसाइपल्स ने। और चैतन्य महाप्रभु तो कितने पर्टिकुलर थे कि उन्होंने छोटा हरिदास जो कि सन्यासी थे और वो भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे, और उन्होंने एक माधवी देवी को, है ना, इम्प्रॉपर कॉन्शियसनेस से देखा और माधवी देवी से राइस ग्रहण किया। फिर उसी राइस को चैतन्य महाप्रभु के लिए पकाया गया। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो बाहर से देख करके उस राइस की क्वालिटी को अप्रिशिएट किया, पर बाद में जब उन्होंने जैसे ही टेस्ट किया तो उन्होंने पूछा कौन राइस लाया है? बोले छोटा हरिदास लाया। बोले कल से छोटा हरिदास को बोल दो हमारे सामने नहीं आने का। सब लोग हैरान परेशान हो गए, अरे ऐसा क्या कर दिया छोटा हरिदास ने। बाद में फिर उन लोग को 1 साल बाद पता चला जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एज अ सन्यासी अगर कोई व्यक्ति वुमेन को एंजॉइंग मेंटालिटी से दिखता है, सो दिस इज डेविएशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दैट डेविएशन। तो इस प्रकार के स्ट्रिक्टनेस शील चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित की, और एक अन्न का एक कौर खाकर ही वो उनको समझ में आएगा कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई है करके। तो इस प्रकार से हमारा हमारा जो मूवमेंट है ये चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स पे शील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के आधारित काफी प्योर मूवमेंट है। कभी कभी हम ऐसे पास टाइम सुनते हैं तो हमको लगता है हमारे लिए तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, क्योंकि हम तो बहुत ही अलग बैकग्राउंड से आए हैं। उस बैकग्राउंड, इतने नेगेटिव बैकग्राउंड से है, उसमें कितना भी वर्कआउट कर लें तो उतनी ऊंची स्तर तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे ऐसा लगता है। बट स्टिल we should try our best, we should endeavor to the best of our consciousness. Endeavor is the only hope. हमारे पास बेसिकली क्या है करने के लिए? सिंसियर एंडेवर। सिंसियर एंडेवर इज द ओनली होप विथ विच वी आर कंटिन्यूइंग द प्रैक्टिसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। करते रहेंगे, एक समय भक्ति योग में लगे रहेंगे तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम होगा, सत्वगुण का प्रभाव बढ़ेगा, सत्वगुण शुद्ध सत्व में एक न एक दिन स्थापित होंगे। भगवान कृष्ण की पूर्ण हृदय से पूर्ण सच्चाई के साथ में हम सेवाएं दे पाएंगे। यही हमारा विश्वास है, ये हमारी आशाएं हैं। अभी क्वालिफिकेशन देखने जाएंगे तो कुछ रहेगा नहीं, तो इसलिए बोलते हैं कि फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सामने जाकर बोलते हैं कि अभी तो पतित, आई एम फॉलन। क्योंकि अभी क्वालिफिकेशन अब अभी देखेंगे तो क्वालिफिकेशन तो कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली ये डिजायर देख करके आप पास कर दो तो अलग बात है। क्वालिफिकेशन तो ज्यादा हमें नहीं मिलने वाला। एक डिजायर देख लें कि हाँ हमारी जो है एक डिजायर है भगवान को सर्व करने की, दैट इज द ओनली वेल्थ विच वी हैव एक्चुअली। क्वालिफिकेशन इज नॉट अवर वेल्थ। Purity to aspire for purity is our wealth. Purity is not our wealth. This is the consciousness of a मध्यम अधिकारी। कनिष्ठ भक्त वो अपने आप को बहुत महान मानता है। जैसे वो कनिष्ठ मेंटालिटी उससे कम होते हैं, धीरे धीरे मध्यम स्तर में आता है, उसके अंदर विनम्रता आती है। वो समझता है हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, दूसरे के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो हमको विनम्र रहना चाहिए। सामने वाले की कमियों को इस प्रकार से निकालना नहीं चाहिए, या इस प्रकार से उसको दोषारोपण नहीं करना चाहिए। वो देखता है हमारे अंदर खुद ही तो इतनी सारी कमियां हैं। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ अ मध्यम अधिकारी, वो काफी मैच्योर हो जाता है। वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचना, देखना, समझना शुरू कर देता है। तो दैट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ अ मध्यम अधिकारी, इज अ मैच्योर डिवोटी। न्यूफाइट जो है वो सोचता है अरे हमारे अंदर इतने गुण हैं, लोग बाग हमारी सही से इज्जत नहीं करते, लोग बाग हमको नहीं पूछते, लोग बाग ये नहीं समझते हम कितने महान है। दिस इज ऑल कनिष्ठ मेंटालिटी। मध्यमाधिकारी दूसरों के अंदर श्रेष्ठ गुण देख करके उन गुणों पर फोकस करता है, कैसे हमारे अंदर भी एक गुण है, कैसे हम एक अच्छे भक्त बन सके, कैसे हम एक आदर्श शिष्य बन सके, कैसे हम अपने गुरु का, शील प्रभुपाद का, चैतन्य महाप्रभु का नाम ऊपर ले जा सके। दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ अ मध्यमाधिकारी। हाउ कैन आई सर्व द मूवमेंट इन अ प्रॉपर कॉन्शियसनेस? हाउ कैन आई बिकम द गुड सर्वेंट ऑफ शील प्रभुपाद? कैसे मैं भगवान का एटलीस्ट एक सच्चा भक्त बन पाऊं? कैसे मेरे अंदर से डिसऑनेस्टी, हिपोक्रेसी के एलिमेंट्स रिमूव हो पाए? That is the aspiration of a मध्यम अधिकारी। ओके, आगे इसमें लिखते हैं, do not talk while honoring Prasad besides glorifying Krishna and his pastimes।
तो अभी ये तो जनरली देखा नहीं जाता है, हमारे तो भक्त लोग प्रसादम लेते लेते ही सबसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। तो उसके लिए फिर यही है कि वी कैन हैव अ कृष्णा कॉन्शियस टॉक रादर देन गोइंग फॉर प्रजल्पा, वी कैन गो फॉर कृष्णा कॉन्शियस टॉक। थोड़ा सा हम भगवान से संबंधित, विचार से संबंधित ही चर्चाएं करें तो फिर ठीक रहेगा, क्योंकि आदत तो अभी हमारी पड़ चुकी है खाते खाते बात करने की। एकदम से आदत को तो नहीं छोड़ सकते। क्या कर सकते हैं इसको, जितना ज्यादा हम प्रजल्पा से कृष्णा कॉन्शियस टॉक में डाइवर्ट कर पाए, दैट इज द एस्पिरेशंस वी हैव। और प्रसादम सर्व करने के टाइम पे भी हमको देखना चाहिए कि कोई अगर गेस्ट है तो हम उनको पहले प्रसादम सर्व करें, इसके बाद में खुद लें या बच्चों को दें। खुद तो जनरली सब लोग बाद में लेते हैं, पर कई बार बच्चों को पहले दे देते हैं, सोचते हैं बच्चे हैं ठीक है पहले इनको खिला देते हैं। देखिए कैसे क्या इमरजेंसीज हैं, बट इट इज आइडियल कि अगर कोई सीनियर गेस्ट को अगर हमने बुलाया है तो फिर हम उनको पहले सर्व करें, इसके बाद में फैमिली मेंबर्स डाल दें। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एटिकेट्स। प्रसादम लेते टाइम पे एक लव की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, टू लव मीन्स टू सर्व मीन्स टू प्लीज। ये मेरे को इतनी अच्छी डेफिनेशन लगी, मैंने इसको एकदम जब पहली बार पढ़ा था श्री राधानाथ स्वामी महाराज के कोर्स बुक में, उसी टाइम पे मैंने याद कर लिया था। कई बार हम सेंटिमेंटल रहते हैं और हम सोचते हैं आई लव हिम, आई लव हर। एक्चुअली लव की वो डेफिनेशन ही नहीं है। लव मीन्स टू सर्व मीन्स टू प्लीज। जहाँ पे हम खुद को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, जहाँ हम चाहते हैं दूसरे लोग हमको सर्व करें, एंड व्हेन वी फील दैट वी लव देम, दिस इज नॉट लव एक्चुअली। To the degree we are ready to serve and sacrifice for others, to that degree only we love them. It is very easy to say I love Krishna, but to what degree we are willing to sacrifice for Krishna is directly proportional to how much we love Krishna. क्योंकि बोलना तो आसान है ना, हाँ आई लव कृष्णा बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, बट टू मीन इट इज डिफिकल्ट। बोले दीक्षा लेना आसान है, पर दीक्षा की दीक्षा के प्रिंसिपल को सच्चाई से पालन करना कठिन है। दीक्षा लेने में क्या मतलब दीक्षा लेना भी इस्कॉन में तो कठिन ही है, पर उसके बाद भी इतना कठिन नहीं है दीक्षा लेना है, फिर भी दीक्षा हजारों हजारों लोगों की हो ही जाती है ना। पर दीक्षा की मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग इनिशिएशन इज sincerely adhering to the vows given to the spiritual master in front of that sacrificial fire in front of deities. That is most important. सोलह माला का जब हम सही क्वालिटी से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सो दीज थिंग्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट। हम किसी का भी इनिशिएशन में नाम हटाते हैं, वो हमसे गुस्सा हो जाते हैं लोग बात, अरे हमारा आपने दीक्षा नहीं होने दिया। अरे भाई आपको इनिशिएशन कमेटी को नहीं लग रहा है कि आप क्वालिफाइड, इस कारण से आपका नाम थोड़ा रोक दिया, आपको होल्ड कर दिया थोड़ा, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं हमसे, साल साल पर गुस्सा रहते हैं हमसे कि आपने जो है हमारा दीक्षा में नाम रोक दिया करके। अभी क्या करें, गुरुवार ने भी तो कुछ मैनेजमेंट को टेम्पल मैनेजमेंट को गाइडलाइंस दी हुई है, थोड़ा देखिए कि व्यक्ति जो है भक्ति में सिंसियर है कि नहीं है करके, तब से ऐसा देखना पड़ता था। बट people are more interested in taking initiation than following the initiation vows. Fifth point, do not throw prasadam. Never touch prasadam with your feet. पाँव से प्रसादम, पाँव में प्रसादम ना लगे, इसके लिए कभी कोई प्रसाद अगर गिर भी जाता है तो हम उसको हाथ से साइड में कर देता कि पाँव में ना पड़े, उसमें फिर अपराध लगता है। कभी भी आप देखें परिक्रमा कर रहे हैं, कहीं पे तुलसी पड़ी है तो तुरंत उसको उठा करके साइड में रख दें, किसी मिट्टी में दे दें, वो उसमें मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, जिसके पाँव में आएगी उसको सिंफुल रिएक्शंस लगेंगे। डू नॉट थ्रो प्रसादम। इसके लिए मैं अपनी माता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बचपन में जब 5 साल का था तभी से उन्होंने इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी कि थाली में से कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं लेते ही बहुत डर से था, डर के मैं लेता था कि अरे कुछ भी आ गया तो ये माता राम तो मुझे खिलाकर ही छोड़ेगी। इसके लिए आई वाज वेरी कॉशियस, वेरी पक्का कि माय प्लेट ओनली दैट क्वांटिटी ऑफ फूड शुड कम कि जिसको मैं फिनिश कर पाऊँ। उस कारण से दिस वाज द बेनेडिक्शन फ्रॉम माय मदर साइड व्हिच शी गिव टू मी। बचपन से ऐसी हैबिट कल्टीवेट थी कि प्रसादम को नहीं छोड़ना है करके। अच्छा, हम किसी को जब सर्विस भी कर रहे हो तो हमको जबरदस्ती करके भर के उसके प्लेट में नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या सामने वाले पे प्रेशर पुट हो जाता है फिर। अभी मैं शुरुआत में बहुत परेशान हो जाता था, हाँ, अभी किसी के यहाँ गया, प्रसाद लेने बैठा, जबरदस्ती करके दे दिया,
अब मेरी आदत जो लिया उसको फिनिश करना ही करना है। तो फिर बड़ा परेशान होने लगा। तो फिर मैंने एक सिद्धांत बनाया, जो चीज़ सामने वाले ने ज़बरदस्ती करके दी है, मैं भगवान को पहले ही बोल देता कि इसका सिर मुझको नहीं लगना चाहिए, और पहले उसको भी बोल देता इसका सिर मुझे नहीं लगा, आपको लगेगा कि आप ज़बरदस्ती करके मेरे प्लेट में डाल रहे हो। तो फिर मैं छोड़ भी दूँगा तो आई वोंट बी ब्लेम्ड, व्हाई? बिकॉज़ आई हैव नो फ्री विल। तो बोलते हाँ प्रभु जी आप तो छोड़ दो, हम उसको ग्रहण कर लेंगे। हमने कहा देखो ये उच्चिष्ट लेने की कोई पद्धति नहीं है। फोर्सफुली। तो ऐसा रहता है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि कैसे कोई गेस्ट को अगर ना बुलाया है तो हाउ वी कैन सर्व एज पर देयर माइंडसेट। दे शुड बी प्लीज्ड एक्चुअली। देन एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ वैष्णव केयर, वैष्णव सेवा इज if you are really able to please the Vaishnava, please the Guru, then just by pleasing them, the sweet blessings emerges out from their heart, and that brings transformation in our life. बोलते हैं ना कि यस्मिन तुष्टिम जगत तुष्टिम, अगर आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया तो पूरे जगत को ही आपने प्रसन्न कर दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ यस्मिन तुष्टिम जगत तुष्टिम। द्रौपदी ने, द्रौपदी का वो पात्र था ना जिसमें से जितना भी अन्न चाहे निकल जाता था। जब दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को उनके 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास भेजा था, तो उस समय द्रौपदी ने चूंकि प्रसाद ले लिया था तो उस पात्र में से कुछ भी नहीं निकलने वाला था, केवल एक अन्न का दाना बचा हुआ था। और उस अन्न के दाने को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया और कृष्ण ने कहा नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तो सारे के सारे दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्यों के पेट से डकार निकल आई। सारे के सारे सेटिस्फाइड हो गए, उनको लगा हमारी तो भूख ही गायब हो गई, और वो लोग फिर वापस चले गए। डिटेल पास्ट टाइम है, पूरा पास्ट टाइम डिस्कस नहीं करूंगा। द पॉइंट इज दैट यस्मिन तुष्टिम जगत तुष्टिम, अगर भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया तो सभी को प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार से द फॉर्मूला ऑफ रिसीविंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम हरि गुरु एंड वैष्णवास, व्हाट इज द फॉर्मूला? बाय प्लीजिंग देम। प्रसन्न रहेंगे तो हमको कृपा मिलेगी। सिक्स्थ पॉइंट है वॉश हैंड्स फीट एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। तो वैसे ही कोरोना काल है तो इसमें तो और ज्यादा हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि हमारी बॉडी हमारे हाथ मिल गई। तो drink a glass of water 1 hour before eating, for some time after eating don't drink. If you at all have to drink something hot. ये डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि अगर आप खाने के 1-1.5 घंटे पहले अगर थोड़ा सा गर्म पानी पिएंगे तो आपको भूख सही से लगेगी। खाने के तुरंत बाद पिएंगे तो डाइजेशन कमजोर हो जाएगा। अगर वाकई जब बहुत ज्यादा प्यास से पीना ही है तो कुछ हॉट, कुछ गरम पी सकते हैं, तो वो डाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है। 8th, Srila Prabhupada said, fill 1/4 of your stomach with water, half with food, and 1/4 with air. Do not overeat. तो ये प्रिंसिपल बहुत ही विवादास्मक प्रिंसिपल रहा है। हमेशा सब लोग पूछते हैं कि पूछिए हमारी जो डाइट है अगर वो 6 रोटी की है तो क्या हमको 3 रोटी खानी चाहिए कल से? इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए। तो कभी कोई इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिला है, ना मैंने आज तक सुना है। कितने वैष्णवों से ये प्रश्न पूछा गया, कभी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। बट एटलीस्ट एक लेवल हम समझ सकते हैं कि अगर 5 रोटी की भूख है, अगर 4 रोटी तक भी हमने खा लिया, थोड़ी सी स्पेस हमने बचा लिया, हम खुद लाइट महसूस करते हैं, हम खुद एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आलस नहीं रहता है। ये तो एकदम दबा के अगर खा लिया हमने तो फिर क्या है कि फिर हम भी जानते हैं कि हमसे और कुछ नहीं होता, फिर केवल बिस्तर ही दिखता है। और 1-2 घंटे कैसे सो जाते हैं हमको ही पता नहीं लगता। So in that way, from the practical point of view, if we will eat little less than what we can eat, it will help us, it will add us for digestion, we will feel energy, we will be enthusiastic, dullness वाली feeling नहीं आएगी हमारे अंदर। How to serve prasadam? We should never waste Krishna prasadam. Best thing is to cook only what is required and then give each person what he wants. That is a Vedic system, that the people sit in rows behind their plates and servers pass down the roads and put a very small portion of each foodstuff on each plate. Unless there is some objection by a person, then nothing is given. Then if anyone wants more, the servers pass up and down and rows continually and give more if anyone requests. In this way, nothing is wasted and everyone is satisfied. तो अभी क्या है कि अगर
प्रसाद सर्व करने वाले अति उत्साही हैं, तो वो अपने उत्साह का प्रदर्शन जो है वो भर भर के जो भी आइटम उनके हाथ में रहता है सामने वाले के प्लेट में जो है वो उसको फीड कर देते हैं। अब जैसे मैं एक बार प्रसादम सर्व कर रहा था किचन में, श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आकर के बैठे, तो मैं कहा अच्छा कि आज का स्पेशल आइटम है दाल बाटी। बड़े बड़े बाफले बाफले बनने थे, बड़े बड़े बाफले थे। तो मैंने तुरंत, महाराज तो महाप्रसाद गोविंद भी कर रहे थे, मैंने तुरंत 2 बड़े बड़े बाफले जो है महाराज की प्लेट में रख दिया। मैं खुश हो गया कि मैंने महाराज को अच्छे से सर्व कर दिया। उसके बाद जैसे महाराज ने तोड़ा तो इतना टाइट बाफला था कि टूट भी नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर इट वाज ऑस्टेरिटी ऑन हिज पार्ट, क्योंकि वो 2 बाफले जो है बड़ी मुश्किल से खत्म करने पड़े। तो ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे समझ में आया। मुझे मैक्सिमम हाफ पीस देना चाहिए था बाफले का, ताकि महाराज टेस्ट करते, अगर महाराज को अच्छा लगता तो फिर मैं और उसमें ऐड कर ही सकता था। सो सी, एडिंग इन अ प्लेट इज ऑलवेज लाइक इन आवर कोर्ट, बट एक बार आपने सामने वाले की प्लेट में ऐड सब कुछ कर दिया, देन रिमूवल बिकम्स डिफिकल्ट। इसके लिए ये कॉन्शियसली, वी शुड बी कॉन्शियसली अवेयर व्हाइल सर्विंग। अटेंशन टू डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव। जितनी मात्रा में हम अटेंटिव रहते हैं उतनी मात्रा में, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ लव। अटेंशन टू डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव। Srila Prabhupada's letter to Kirtiraj: all to be served should be invited to sit on the floor, and prasadam should be served by qualified devotees. Those who are served should be very clean, peaceful, and satisfied. They should eat before serving if necessary. ये क्यों लिखा है? नहीं तो कोई भूखा व्यक्ति तो वो पूरे टाइम यही सोचेगा कि अरे प्रसादम का आइटम है, इनने ले लिया तो हमारे लिए क्या बचेगा। इस कॉन्शियसनेस से व्यक्ति सर्व करेगा तो सही से वो सर्व नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत लालायित रहता है, तो उसको पहले थोड़ा खिला देने का यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जैसे हमारे जो फास्टिंग वाले डेज रहते हैं और कोई बड़ी बड़ी फीस्ट रहती है कई टेम्पल्स में, चौपाटी में गौरांग को बताते हैं कि अब जैसे 5,000 लोगों को आमंत्रित किया है और प्रसादम भी 5,000 के हिसाब से बनाया है, फास्टिंग का डे है। तो हमारे जो आईवाईएफ के सर्विंग वॉलंटियर्स रहते हैं, उनको अगर हम बिना उनकी प्लेट बनाए अगर हम सर्व करवाते तो बहुत थोड़ा थोड़ा सर्व करते हैं। उनको लगता है 5,000 लोगों को प्रसाद खिलाना है, मालूम नहीं हमारे लिए कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो एकदम सब्जी को भी अचार की तरह देते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा। और उनकी अगर प्लेट इनको बोल दी ठीक है आप एकदम भर करके अपनी प्लेट तैयार करके अपनी टेबल के नीचे रख लो, तो फिर क्या है कि वो फिर निश्चिंत हो जाते हैं। उसके बाद तो बोलते हैं लीजिए ना प्रभु जी, थोड़ा और लीजिए, भगवान की कृपा है, लीजिए थोड़ा और। तो फिर अचार को भी सब्जी की जैसा देना शुरू कर देते हैं, और फिर भक्त लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी थोड़ा करके दीजिए, थोड़ा करके दीजिए। तो दैट इज द थिंग। तो अलग अलग गुणों में सिचुएटेड है हमारे जो प्रसादम सर्विंग वॉलंटियर्स हैं। जो मूड ऑफ गुडनेस वाला है वो उसको चल जाएगा, कुछ मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, वो फिर भी करेगा। जो थोड़ा रजोगुण वाला है वो उसका थोड़ा सा रहेगा कि हाँ भाई हमको भी थोड़ा प्रसाद अच्छे से लेना है, अगर हमारे लिए हमारा कोटा अगर सिक्योर देन आई कैन सर्व enthusiastically। कोई थोड़ा इग्नोरेंस में तो हमेशा ही फियरफुल रहेगा कि अरे मालूम नहीं क्या होगा, आज क्या पूरे दिन ही हमको फास्टिंग रहना पड़ जाएगा कि लास्ट में केवल दाल चावल खा करके काम चलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फियरफुल रहेगा। सो जिस कैटेगरी के हमारे पास वॉलंटियर्स, उसी हिसाब से फिर अरेंजमेंट्स होना जरूरी है। खासकर जब हम यहाँ पे टेम्पल स्ट्रक्चर में बात करें तो हमारे लिए ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अभी प्रसाद में बंद हो गया, इसकी सर्विंग प्रॉपर हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सर्व जस्ट द राइट अमाउंट सो दैट नथिंग इज वेस्टेड, ऑलरेडी डिस्कस। सीनियर्स, इसमें देखिए 4th पॉइंट आया, सीनियर्स शुड बी सर्व्ड फर्स्ट, हाउस होल्डर शुड सर्व द गेस्ट, ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन शुड बी सर्व्ड फर्स्ट। तो इसमें लिखा है कि सीनियर्स को, ओल्ड पीपल को और चिल्ड्रन को, इन लोग को जो है वो टॉप कैटेगरी में रखा गया है, के बाद में फिर बाकी लोगों को रखा गया है। Place salt and lemon on each plate before those to be served and seated. Always serve water first. Prasadam should be served in the following order. सबसे पहले कड़वे आइटम, उसके बाद फिर आपके एस्ट्रिजेंट आइटम जैसे स्पाइनच वगैरह है, फिर फ्राइड प्रिपरेशंस, दाल, फिर स्पाइसी वेजिटेबल्स, फिर सोर आइटम्स, फिर लास्ट में फिर स्वीट प्रिपरेशंस। और राइस चपाती तो बीच बीच में जैसे हम देते हैं वैसे देते ही रहेंगे। Go around serving seconds until everyone is satisfied. Don't be stingy. Don't hold anything back because you want to take it later. Prasadam is meant for distribution. Do not touch plates with the serving spoons. Touching the plates contaminates the spoon. ऐसा होता है ना, हम सर्व करते करते जो है टच कर देते हैं ड्यूटी प्लेट को, तो फिर उसको तुरंत फिर हमको धोना चाहिए।
अगर नहीं धोते तो फिर क्या है कि वो एक का जूठा दूसरे को देने वाली बात हो जाती है. Don't let your fingers touch any of the preparations, even water. Salt should never be served by hand but a spoon. Never touch prasadam with your feet or tap it. Serve the prasadam from serving buckets. Don't drag buckets along the floor or make the clanging noises with the pot handles or utensils. Serve quietly. After everyone has finished the morning prasadam, clean the place immediately. तो ये सारे इसमें पॉइंट्स हैं. फिर लास्ट में एक शील प्रभुपाद का कोट दिया गया है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं. अभी 8:18 हो गए हैं. मैं सोचा कि 12 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन के रख लेते हैं, नहीं तो डिस्कशन हो ही नहीं पाएगा. तो अभी आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो आप पार्टिसिपेंट्स में जाकर के हैंड रेस कर सकते हैं. Hare Krishna, Pranams dear devotees. So those who have any questions, then please ask, or they can raise their hands on Zoom. Yes, Meenakshi Mataji, I have a question, I think. Yes, Mataji. Hare Krishna. I think Saurabh Prabhu also wants to ask something. Yes. I guess Hare Prabhu, you Krishna. can ask. Can I ask? Yeah, Prabhuji. Please go ahead. Hare Krishna. Prabhuji, you told us about this chanting is the medicine, and you said one thing that food is the. Sorry, I missed that point. What do you mention about the? Yeah. There's a quote in the beginning. Chanting is the medicine, and our prasadam is the diet for curing material disease. So anything which is curing the material disease will also be considered as medicine. So basically, both are medicine. Chanting is the medicine, and prasadam is the medicine. So this you can find in the initial few lines of this link, vaishnavetiquettes.com. And Prabhuji, for example, for household or for the family in which, suppose if husband is basically do not want to have onion or garlic, but the family other members want, because they are not associated with ISKCON, they want to have onion and garlic. In that case, how it should be treated? Means like, because the food is made by generally the woman in the family, and then the food has to be made for everyone. So in that case, how we should go ahead? Yeah, life is all about priority. So अभी जैसे उसमें बघार लगाने के टाइम पे जब प्याज का तड़का लगाते हैं, उसके पहले अगर आपकी दाल या आपकी सब्जी निकाल ली जाए, उसको सिंपल राई जीरे से अगर बघार लगा दिया जाए, तो दिस कैन बी वन ऑफ द अरेंजमेंट्स. क्योंकि जैसे दाल बनी है तो पहले तो उबालते हैं, उसके बाद में उसका बघार लगता है. सो इन दैट पे अगर थोड़ी सी पोर्शन अगर पहले अगर एक मेंबर के लिए निकाल लिया जाए, और उसको भले चाहे सिंपल तड़का लगा दिया, व्यक्ति से खुद ही ओनरशिप ले ले कि मैं ही तड़का लगा देता हूँ. तो इन दैट वे लाइक दिस कैन बी वन ऑफ द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. एक्चुअली हम लोग हॉस्टल्स में थे ना, हम लोग को भी ये समस्या होती थी कि 260 लोगों का जो भोजन बनता है, उसमें से 80 लोग हैं जिनको ओनियन गार्लिक नहीं चाहिए. 255 लोगों का अलग बना के 5 लोगों का तो अलग नहीं बनाएंगे. तो उसमें फिर यही करते थे हम लोग कि हम बोलते थे कि हमारी एक सब्जी और एक दाल, वो आप पहले अलग से निकाल दो, और उसमें अलग से एक सिंपल एक राई जीरे का एक तड़का लगा दो, उतने में हम खा लेंगे. इस प्रकार से हॉस्टल में हमने मैनेज किया. Thank you. थैंक यू. ओके, मीनाक्षी माता जी, मेघा माता जी एंड निधि माता जी, 3 माता जी have asked. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. धन्यवाद, प्रणाम. प्रभु जी, जैसे हम लोगों ने अभी आपने बताया कि प्रसादम जो है, मतलब कि उसे डिस्पोज नहीं करना चाहिए. बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जैसे सम टाइम कि हम लोगों के या तो जब गेस्ट आते हैं तो प्रसादम बच जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कहीं से आता है प्रसादम, तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होता कि हम उसे पा सके. तो हम उस प्रसादम का क्या कर सकते हैं बेस्ट यूज, कि हम उसको डिसऑनर भी ना करें. और ऑब्वियसली हम लोग, बहुत दुख होता है कि हम उसको ऑनर नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से. तो हम उसको किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस प्रसादम को? जैसे दूसरे दिन जब मेल मेंबर्स ऑफिस जाते हैं तो अपने साथ में
किसी 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 डिस्पोजल में, किसी पेपर डिस्पोजल में कुछ में रख करके कोई गाय है या कोई पशु है उनको फीड कर सकते हैं। तो दिस कैन बी वन ऑफ द प्रैक्टिकल वेज कि मतलब कि कोई किसी जीवित प्राणी नहीं उसको उसको जो है वो ग्रहण कर लिया करके। हमारे टेम्पल में तो गौशाला है तो दिक्कत नहीं रहती है, शाम को जो भी प्रसादम बचता है सारे गाय को खिला देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सब जगह तो ये फैसिलिटी नहीं है, तो ऑन द सेकंड डे जब भी सुबह जाते हैं या रात में अगर कुछ कोई कॉलोनीज है तो मॉर्निंग वॉक वॉक करते हुए थोड़ा आगे चले गए, खिला दिए, तो इन दैट वे दैट इज कंसिडर्ड दैट इज नॉट वेस्टेड बट सम जीवात्मा हैज कंज्यूम दैट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे बताया था कि डिवोशनल कंपोनेंट्स हर एक्टिविटीज में होना चाहिए, जी। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब हम बुक रीड करते हैं तो वी डोंट नो कि किस कॉन्शियसनेस से हम रीड कर रहे हैं। जस्ट वी रीड द बुक, कि हमें कहा जाता है कि आप बुक रीड करो तो उससे आपकी कॉन्शियसनेस प्योर होगी एंड यू विल एसोसिएट विद कृष्णा। बट हम उसमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा डिवोशनल कंपोनेंट उसमें एडेड है या नहीं? आई डोंट नो, प्लीज। इसलिए हम शॉर्ट मंगलाचरण करके बुक चालू करते हैं। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि जो आपने इतने रात भर जाग करके इन बुक्स में जो लिखा है वो कृपा करें कि इसकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इसका जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है ये हमारे ब्रेन में फीड हो सके, ये हमारे हृदय तक आ सके। सो विथ इनिशियल प्रेयर्स वी शुड रीड। मैं तो हमेशा ही स्केल पेंसिल साथ में रखता हूँ। कभी भी बुक रीडिंग करता हूँ तो स्केल पेंसिल के बिना मेरी कोई भी बुक रीडिंग नहीं होती, हमेशा मार्क करते हुए करता हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मार्क किया कि नहीं किया, दोबारा फिर उसको रिपीट भी करता हूँ। मेरी कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें ऐसा मिलेगा ही नहीं कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन नहीं है तो मतलब मैंने पढ़ी नहीं है बेसिकली। तो दैट इज द मेथड विथ व्हिच आई रीड। उसमें से कैसे जो देखिए, आप बुक रीड करेंगी वही सेक्शन आपको कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, मैं रीड करूंगा, रोनी प्रभु रीड करेंगे अलग अलग, क्योंकि हमारा साइकोफिजिकल नेचर अलग अलग है ना, तो उस हिसाब से अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमको अलग अलग समय में कैच करते हैं। पर जो इन्फॉर्मेशन जो बुक्स में दी गई है तो स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल, परंतु हमारी कैचिंग एबिलिटीज के हिसाब से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सीधी सीधी डाइजेस्ट हो रही है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और हम जब जानने समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या उत्सुकता थी, ऐसे क्या इंस्पिरेशन थे शील प्रभुपाद के, जिन्होंने इन बुक्स को इतना ज्यादा महत्व दिया, इतना ज्यादा लिखा, समय निकाल करके लिखा, डिस्ट्रीब्यूट करने का आदेश दिया। तो एक इंक्विजिटिवनेस, एक सेंस ऑफ इंक्वायरी हमारे अंदर रहनी चाहिए, उसके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। सो दैट इटसेल्फ इज वेरी वेरी प्यूरिफाइंग इन नेचर। थैंक यू। निधि माता जी ने हैंड रेस किया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भी सौरभ प्रभु ने जो क्वेश्चन पूछा है उसी लाइन पे है कि जैसे घर में और लोग प्याज और लहसुन खाते हैं और हमें मतलब अब जैसे आपने हॉस्टल का एग्जांपल दिया कि 5 लोगों का निकाल दो, बट इन माय केस लाइक आई वुड लाइक टू ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन एक वो प्याज लहसुन में नहीं बना होता है, लेकिन एक वहम रहता है कि कहीं, क्योंकि किचन में प्याज रहते हैं, कई बार रहते हैं कई बार नहीं रहते हैं, तो एक वहम रहता है कि अगर कोई और बना रहा है तो उन्होंने मसालों में हाथ लगा दिया या कहीं और मतलब उसका हाथ लग गया, तो उसको वो जो एक हमेशा एक वहम दिल में रहता है कि बिल्कुल 100% प्योरीफाई नहीं है, तो उस केस में कैसे अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं? This is like one part of the question. Another part is like how do we handle the situation and if like we have gone to office और वहाँ पे अगर मतलब कुछ ऑफिस भी नहीं, अगर ऑफिस में तो चलिए हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर कई बार होता है कि फैमिली में वेडिंग है और कोई और ऑप्शन नहीं हो पा रहा है एंड लाइक क्लोज फैमिली मेंबर्स की वेडिंग है, तो वहाँ पे तो प्याज लहसुन का खाना ही मिलता है, तो उस चीज को कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं? ये वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये सारे सिचुएशंस मैंने खुद ही 2.5 साल तक अपने कंपनी में जब था उस टाइम पे सारी सिचुएशन से एक एक चक्रव्यूह को तोड़कर ही बाहर निकला हूँ। तो
I feel I should be able to give some satisfactory answer. अभी कोई दूसरे से पूछेंगे, हो सकता है वो क्लियर कट में शास्त्रिक आंसर दे दे, परंतु आई नो, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस सर्कमस्टेंसेस. मैंने अपने कितने रिलेटिव्स की मैरिजेस भी अटेंड की जहाँ पे प्याज लहसुन वाली था जो खाना, और रिलेटिव्स के यहाँ जाता था तो उनकी तरफ से जो प्रेशर पड़ता था, और घर में भी जो थे मेरे फादर तो प्याज लहसुन ही खाते थे. तो ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस आई फेस. पहला पॉइंट है डूइंग द बेस्ट एंड लिविंग द रेस्ट ऑन कृष्णा. डूइंग अवर बेस्ट एंड लिविंग द रेस्ट. जो हम कर सकते हैं वो अगर हमने कर लिया तो देन वी शुड बी सेटिस्फाइड. तो ये कलयुग है, कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स. कले कले कलेर दोष निधे राजन से शुरुआत होती है उस वर्ष की, हस्ती है को मान गुणा. तो दिस कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट. तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा डिपेंडेबल कंपोनेंट वो होली नेम है. The completely dependable component is not Prashadam in this case. Prashadam is not the Yug Dharma. Holy name is the Yug Dharma. Then that way, the greatest emphasis should be to chant holy name with attention, with proper consciousness. Definitely, Prashadam will add up. But it's not like if a person is not getting Prashadam, he cannot be delivered. If a person is not getting proper Prashadam, he cannot be delivered. Circumstances ऐसे हैं, situations ऐसी हैं, इनके बीच में ही रहते हुए हमको कार्य करना है. वैसी स्थिति में वी कैन ऑलवेज एंडेवर टू अवर बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज, बट जो चीजें हमारे स्कोप के बाहर हैं देन वी हैव टू टॉलरेट. ये हर एक व्यक्ति के केसेस में अलग अलग सिचुएशंस रहेंगी. आपने तो उन्नयन काल की बात की. अभी प्रश्न ऐसे आते हैं, मुंबई में फैमिलीज हैं जहाँ पे हस्बैंड जो है उसके लिए वाइफ को दोनों टाइम मीट कुक करना पड़ेगा. सुबह पता चला कि मटन कुक करना पड़ रहा है, शाम को पता चला कि चिकन कुक करना पड़ रहा है. अभी वो क्या करेगी वो लेडी बेसिकली. तो जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन सुना है, श्री राधानाथ स्वामी महाराज ने भी जिस प्रकार के आंसर्स दिए हैं वो यही है कि अल्टीमेटली वी शुड ऑलवेज प्रे टू कृष्णा विद आवर ह्यूमिलिटी, एंड वी शुड बिकम हम्बल विद अटर ह्यूमिलिटी. वी शुड प्रे टू कृष्णा कि कृष्णा प्लीज गिव मी the right direction, the right consciousness with which I can come out of the situation. And since these situations are out of my control, therefore you need to help. The things which I can do, I will do. The things which I can do, I am dependent upon you, like Draupadi. So in that way, depending upon the seriousness and sincerity of a practitioner, the things will take shape. The things will change. जहाँ पे हम मना कर सकते हैं वहाँ पे हमको मना करना चाहिए. जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं वहाँ हमको अवॉइड भी करना चाहिए. जहाँ पे हम अवॉइड नहीं कर सकते कुछ चीजों को, वहाँ पे हमको आई एम सॉरी बोल करके आगे बढ़ जाना चाहिए. So that is what the practicality aspect is. Thank you, Prabhuji. Thank you. Correct. Okay, Bhuvan Mohini Mataji is asking. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलूंगी. ऐसे नहीं है कि उज्जैन में मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे बहुत प्यार मिला है. पर मैं ऐसे बताना चाहती हूँ आपको कि जैसे किसी की शादी होती है ना, जो एक मायका होता है जी, और फिर एक उसका अपना घर बसता है. अच्छा, तो अच्छा. मेरा उज्जैन और गुड़गांव का वही रिलेशन है. गुड. ना मैं तो ऐसे बोल दिया ना मैं यहाँ के बिना रह सकती हूँ ना गुड़गांव के बिना. तो आप मत सोचिए मुझे यहाँ कुछ कम प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला प्रभु जी. जी. सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि जैसे जब हम कुछ भी प्रसादम बनाते हैं, जब हम भोग बनाते हैं भगवान का, तो दिमाग में क्या चल रहा होता है कि एक कैलकुलेशन चल रहा होता है. ये इतना ये खाएगा, इतना ये खाएगा, ऐसे इस टाइप से कैलकुलेशन चलता है जो हम बनाते हैं. जैसे कि एक उदाहरण ले ले, हम आलू का पराठा बना रहे हैं तो दिमाग में एक कैलकुलेशन चलेगा कि हाँ 2 राधा प्रिया, 2 श्यामा प्रिया का, 4 प्रभु जी का, 2 मेरा, ऐसे इस टाइप से ऐसे एक कैलकुलेशन चलता है. चलेगा. वो मटेरियल कैलकुलेशन करने के बाद में जब आप मैदान में उतरते हैं तो उस टाइम पे एटलीस्ट फिर कृष्णा कॉन्शियस होकर के पराठा बना सकते हैं. दैट कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट. हम भी करते हैं, करना जरूरी भी है. आपने 25 पराठे बना दिए तो उसके बाद फिर आपको ढूंढना पड़ेगा खिलाना किसको है. तो वैसी स्थिति में दैट कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट. सेल्फ एंजॉयमेंट का कैलकुलेशन चलता है, ये कहने का मतलब. दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट इज इम्पोर्टेंट. इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल है. युद्ध क्षेत्र में अर्जुन है तो he was Krishna conscious, but at the same time he was always focusing his intelligence कि अभी वहां से अग्नि अस्त्र चला है तो यहाँ से हमको वरुण अस्त्र का प्रयोग करना है उस अग्नि अस्त्र को बुझाने के लिए. तो इस वहां से नाग अस्त्र चला है तभी हमको वो गरुण अस्त्र चलाना पड़ेगा. तो all these calculations were in his mind, but still he was Krishna conscious.
तो वहां पे आपको कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, वो सारे पैरामीटर्स की क्लैरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, परंतु उसका मेन उद्देश्य जो है वो कृष्ण की सेटिस्फैक्शन के लिए बनाने का है. So do all these calculations, do everything which is needed, but ultimately it is aiming to satisfy Krishna. If that consciousness is maintained, then you have achieved 10 out of 10. Yeah. Thank you so much. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Neha Mataji, you have question? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Dhanwad pranam. प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज कि आपने बताया कि जो कंठी माला पहनता है तो गले से नीचे कुछ भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जो शास्त्रों के अगेंस्ट हो, जैसे अनियन, गार्लिक, मीट। तो लाइक मी एंड माय प्रभु जी, दे आर वेयरिंग कंठी माला एंड इवन माय डॉटर इज वेयरिंग। तो हम लोगों ने तो काफी हद तक लहसुन, प्याज वगैरह काफी छोड़ दिया है, rather छोड़ ही दिया है। लेकिन जो मेरी डॉटर है, शी इज जस्ट 8 years old, तो sometimes she is having chips and all, and she's also having food from outside, some junk food. So at that time घर में तो प्रसादम बन रहा है, but that time I do not stop her because she's, मुझे ऐसा लगता है because मेरा जो बड़ा बेटा है वो तो खाता है, तो फिर how can I stop her from not eating such things? So she's wearing kanthi mala, so is it okay for her? Because she's Uh, eating onion, garlic at times. yeah, a bit tricky question because अभी वो इतनी grown up भी नहीं हुई है ना, तो उसकी उतनी समझ भी नहीं है. So if you will impose rules and regulations now, she will hate Krishna consciousness. So on children's, Krishna consciousness should never be imposed. Otherwise, they become the hater of Krishna consciousness. See, like we became the lover of Krishna consciousness because hostel में हमको opposition मिला, घर में हमको opposition मिला, पर उसके बाद भी हमको कृष्ण चाहिए थे. तो इस कारण से उस opposition को चीर करके हम आए हैं. तो उस कारण से it was more genuine. पर जहाँ पे devotees अगर बच्चों को थोड़ा सप्रेस करके ये नहीं करना बिकॉज दिस इज आउटसाइड कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उनके मन में एक रहता है एक दिन आएगा जब मैं फ्री बर्ड बन करके बाहर अपने मन से अपनी स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कर पाऊंगा और मैं खुल करके जिंदगी जी पाऊंगा. दैट इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग. So in that way, to the degree we can inspire them, to that degree we can help them. Imposition won't work in case of children. So if you can inspire her not to go for those products, that is okay, but never put opposition, never pose objections. So that is very important. और अभी child है तो I don't think इतना matter करता है, but still like जो भी वहाँ local authorities उनसे एक बार और consult कर सकते हैं, because in your case even if you are eating sometimes, then you are eating out of majburi, but she is eating out of willingness. So in that way I cannot straight away answer this question. In your case you can continue wearing because voluntarily you don't want to eat. Sometimes circumstances comes and you eat. So in your case still the things are in a light gray area, so you can continue. But in her case I cannot give a direct answer. I just shared the concepts and you can discuss with the local management, क्योंकि कंट्री वालों को लेकर के अलग अलग मंदिर के अलग अलग नियम है. कोई इस्कॉन की कोई जीबीसी की कोई पॉलिसीज ही नहीं है कि जो जिसको बेसिस लेकर के मैं कुछ बोल सकूं. बट ऑलवेज गिव अ लॉट ऑफ लव एंड केयर टू द चिल्ड्रन. जितना ज्यादा प्रेम हम बच्चों को देते हैं उतने ज्यादा वो बेसिकली कॉन्फिडेंट भी रहते हैं और उतने ज्यादा प्रफुल्लित रहते हैं. वास्तविक रूप से उनकी ग्रोथ जो है वो हो पाती है. बोलते हैं जिस बच्चे को बहुत ज्यादा लव मिला है ना, उसका लस्ट कंपोनेंट बेसी कम रहेगा. The dissatisfaction causes agitations and several vulnerable issues in future. So they should have they should really appreciate the homely atmosphere. Yeah. Okay, Shivani Thank you, Mataji. Prabhu. Thank you so much. Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu ji, Dhanwad pranam. Dhanwad pranam. Prabhu ji, I have one question regarding एक स्टार्टिंग में मुझे पूर्णमयी माता जी ने बताया था कि जूठा नहीं खाना चाहिए हमें किसी का until unless is a senior devotee and मतलब हमें अपना जूठा देना भी नहीं चाहिए किसी को. तो मतलब किसका हम जूठा, जैसे फैमिली मेंबर्स में अगर हम देखें तो which is allowed and which is not allowed and क्या होता है उससे. चलिए, जो भी चीज कोई व्यक्ति जूठा कर देता है तो उसमें उससे कॉन्शियसनेस आ जाती है. तो जनरली हम जिन लोगों की उन्नत चेतना है उनसे हम लेना चाहते हैं. तो इस कारण से कोई वरिष्ठ सीनियर वैष्णव आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनको उचित लें, परंतु उनकी आज्ञा से ही लेना अच्छा है. इसको मतलब
फनी वे में कई बार हमारे सेंटर्स वगैरह में लेते, तो वो सही नहीं है, बल्कि एक श्रद्धा के साथ में उनकी परमिशन से या इस प्रकार से लें, तो फिर वो दैट इज अप्रिशिएबल, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस जो है उसमें फूड में जाती है। हम अपना जूठा किसी दूसरे को इसलिए नहीं देना चाहते कि हमको लगता है कि हमारी कॉन्शियसनेस तो अच्छी नहीं है, या ये बहुत सारे अनर्थ हैं, तो हम अपने अनर्थ दूसरे को क्यों देंगे भाई? हमारा नेगेटिव में अकाउंट, उसका भी नेगेटिव में अकाउंट हो जाएगा। तो इस सेंस में वी ट्राई टू अवॉइड गिविंग our remnants, our jhutha to others, but we are eager to take the remnants of other senior Vaishnavas. और जो आपस में बोलते हैं कि हम तुम्हारा जूठा खाएंगे तो हमारा जूठा खाओ, इससे जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है उसके लिए श्रील भक्ति प्रेम महाराज बोलते हैं दैट इज गिद्ध भोजन तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। वो हमारे हॉस्टल कल्चर में था या फैमिली कल्चर में भी था, सब लोग इस प्रकार से जूठा खाकर ही प्रेम का प्रदर्शन करते थे। बट जैसे हमने कहा कि प्रेम का प्रदर्शन मीन्स टू लव, मीन्स टू सर्व, टू लव सर्व मीन्स टू प्लीज। लव मीन्स सैक्रिफाइस, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। लव की डेफिनेशन ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम सैक्रिफाइस को बेसिस बनाकर ही हम समझते हैं, सुनते हैं। तो इन दैट वे वी कैन हैव अ क्लैरिटी इन अवर कॉन्शियसनेस। Okay, Megha Mataji, do you have another question? Okay, this is the last question. After this, we will wind up. Yeah, go ahead. Thank you. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन प्रसादम से रिलेटेड था। जी समटाइम्स हम क्या होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस वो नहीं होती कि हम कृष्णा के लिए फूड बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं। समटाइम्स हमारी कॉन्शियसनेस ये होती है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए ये बनाना है या अपने लिए बनाना है, लाइक दैट। समटाइम्स होता है कि कृष्णा के लिए बनाना है, बट समटाइम्स ऐसी कॉन्शियसनेस हमारी होती है। तो हम उस कॉन्शियसनेस को समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने आप से कहते हैं कि नहीं, हमें कृष्णा के लिए बनाना है, हमें कृष्णा के लिए बनाना है। हम ये बोलते हैं कि हमें कृष्णा के लिए बनाना है, बट वो आर्टिफिशियल वे में होता है समटाइम्स। तो इज इट गुड प्रैक्टिस टू से आवरसेल्फ कि हमें कृष्णा के लिए वो फूड बनाना है? ना, ये इसका मैं आंसर उसी प्रकार से दूंगा जैसे भुवन मणि माता जी ने कहा था कि ठीक है वो टेक्निकल पार्ट हो गया कि इतने इतने पराठे इसके लिए बनाने हैं, ठीक है, वो आपका टेक्निकल पार्ट हो गया कि आपके हस्बैंड के लिए बेसिकली क्या क्या आपको बनाना है। दैट पार्ट इज ओवर ना। आपने मेन्यू सेलेक्ट कर लिया ना कि आज भाई भिंडी की सब्जी बननी है और दाल फ्राई बननी, चटनी बननी, दैट पार्ट इज ओवर। नाउ व्हेन यू आर एक्चुअली इनटू द फील्ड, देन यू कैन गो विद द प्रिपरेशन ऑफ अ डिफरेंट माइंडसेट। अभी जो मुझे है इसके लिए कृष्ण के लिए प्रिपरेशन से बनानी है, क्योंकि आपके हस्बैंड का सेटिस्फेक्शन पार्ट तो वैसे भी कवर हो ही जाएगा, क्योंकि दैट प्लानिंग पार्ट इज ऑलरेडी डन। Now when you are already entering in the arena, then you can jump into the different consciousness। और आपको पता भी होना पड़ेगा कि अगर इस कॉन्शियसनेस अगर नहीं बनाएंगे तो बेसिकली ऑफरिंग का स्पिरिचुअल कंपोनेंट उतना ही वीकर होता चला जाएगा। एंड अल्टीमेटली by developing our spiritual component, we will be joyfully situated, not just by satisfying the material components। ये कंसेप्ट की क्लैरिटी भी जितनी ज्यादा रहेगी उतना हम इस पे वर्कआउट कर पाएंगे। सो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग एनीवन फ्रॉम वर्किंग आउट द एसेंशियल कैलकुलेबल कंपोनेंट्स की क्या बनना है, कितना बनना है, क्या उसमें डलना है, ये कैलकुलेशंस तो करने ही पड़ेंगे हमको अगर हम किचन में जा रहे हैं तो। बट इसके बाद में जैसे हम एंटर होते हैं तो एट दैट टाइम द कॉन्शियसनेस शुड चेंज rather than we consciousness। to the degree we can come to Krishna consciousness, it will be better। it may take 1 week, 1 month, 1 year, whatever it may be। बट अभी जर्नी तो हमको कहीं ना कहीं से जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। प्रभु जी, आई वांट टू क्लैरिफाई सम पॉइंट अबाउट इट। लाइक क्या होता है कि हमें पता है कि हमें कृष्णा के लिए फूड सर्व करना है, बट हम उतने अभी न्यूफाइड डिवोटीज है, तो उस लेवल पे अभी हमारी कॉन्शियसनेस नहीं है कि हम विद प्योर हार्ट कृष्णा को वो फूड सर्व कर रहे हैं। तो हम मतलब मैं अपना बता रही हूँ, समटाइम्स आर्टिफिशियली आई से माई सेल्फ की दिस फूड इज फॉर कृष्णा, दिस फूड इज फॉर कृष्णा। तो आई वॉन्ट टू आस्क कि इज इट गुड प्रैक्टिस टू से आवर सेल्फ एट इनिशियल लेवल, जब तक हमारी कॉन्शियसनेस वो नहीं हो जाती कि बाय हार्ट की वी आर पेयरिंग होगा टू कृष्णा। इट इज अ गुड प्रैक्टिस, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। धीरे धीरे बोलते बोलते फिर असलियत में भी चीजें आ जाएंगी। और बेसिकली हम तो भोग को गुरु परंपरा के माध्यम से ऑफर करते हैं, हम डायरेक्टली ऑफर नहीं करते। हमारा अभी क्वालिफिकेशन है ना, आगे 10 साल बाद भी रहेगा। हम तो स्टिल गुरु महाराज को प्रभुपाद को दे देते हैं, प्रभुपाद के माध्यम से फिर वो चीजें आगे जाती हैं। तो सिंस प्रभुपाद इज ऑफरिंग, दैट्स व्हाई कृष्णा इज एक्सेप्टिंग। So that is the understanding we have।
तो बोली इस प्रकार से मैं भी जब डीटी वर्शिप करने जाता था तो मैं बोलता था कृष्णा आई लव यू ऑल्दो आई डू नॉट लव कृष्णा बट स्टिल बोलते बोलते कहते कहते फिर प्यार हो भी जाता है तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, नो प्रॉब्लम, यू कंटिन्यू। Thank you so much, Prabhuji. Thank you. Hare थैंक यू, Krishna. थैंक यू वेरी मच। द लास्ट पॉइंट विच आई वांटेड टू शेयर, मैंने इस साल के इनिशियल में एक कमिटमेंट लिया था कि आई विल render 366 times DT worship for the pleasure of Krishna, but in the initial 118 days, शुरुआत के 118 दिन में केवल 50 ही आरतियां हो पाई थी। I was not very confident कि what will happen, क्योंकि the remaining target was very high and the number of days were quite low, क्योंकि initial 2 महीने तो ठंडी के थे तो वैसे ही मैं नहीं जा पाया, तो I was thinking कि शायद नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे सिंगल आरती को रेगुलर किया, फिर एक दिन में 2 आरती करके चालू किया। सो 366 का टारगेट तो फिर पहले पूरा हो गया था। इसके बाद फिर 500 का टारगेट लिया था और 500 टारगेट को अचीव करने के लिए फिर एक दिन में 3 टाइम डीटी वर्शिप करना शुरू किया था। तो आज की डेट में 495 हो गए हैं, परसों तक 500 पूरे हो जाएंगे और अगले हफ्ते मैंने सोचा अभी चूंकि परसों ही पूरे हो जाएंगे तो इसलिए मैंने सोचा आज ही आपके साथ डिस्कस करूं। So sometimes we take some challenge for Krishna, and it may appear that it is very Herculean, it is very difficult task. But if we continue with sincerity and surrender, sometimes the failure turns into success. So I just thought to share it with you all so that I can continue to receive your blessings and may continue performing services with higher enthusiasm. Thank you very much. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Anant Koti Vaishnav Vrind ki, Gaur Premanande. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. Mataji, do you have any question? Bhumani Mataji. Oh, Prabhuji left. I think Prabhuji has left already. Hare Krishna. So thank you, dear devotees, for joining, and I hope it was a very wonderful session by Prabhuji today, and I hope everyone was able to get all the answers. There were so many questions as well. So we'll end the session here now. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna.